سندھ ہائی کورٹ انسداد دہشت گردی عدالت اور دیگر عدالتوں میں کیسز کی سماعت اور فیصلوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ ہائی کورٹ آئینی بینچ نے ٹی ایم سیز واجبات کیس میں رپورٹ طلب کر لی۔ محکمہ فائنانس سے فنڈز کی فراہمی اور تقسیم کی تفصیلات طلب۔ عدالت نے حکومت سندھ کو 18 جون تک مہلت دے دی۔ غیر قانونی کال سینٹر کیس میں 6 ملزمان عدالت میں پیش۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی نے تمام ملزمان کو جیل بھیج دیا۔ سائبر کرائم کے مطابق ملزمان بینک اکاؤنٹس ہیک کرتے تھے۔ عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ نے کاروکاری قتل کیس کی درخواست خارج کر دی۔ جسٹس سلیم جیسر نے از خود نوٹس غیر مؤثر قرار دے دیا۔ مقتول علی احمد بروہی کی لاش تاحال برآمد نہ ہو سکی۔ عدالت نے درخواست گزار کو اپیل میں رجوع کرنے کو کہہ دیا۔ ڈکیتی منصوبہ بندی کیس میں ملزم مقبول کو ریلیف مل گیا۔ ایڈیشنل سیشن جج نے ملزم کی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت کا 50,000 روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ پولیس مقابلہ کیس کی سماعت سٹی کورٹ میں ہوئی۔ ملزم ندیم پیش ہوا جبکہ شریک ملزم امجد غیر حاضر رہا۔ عدالت نے حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ آئندہ سماعت پر ملزمان پر فرد جرم عائد ہوگی۔ ایک نئے وفاقی بجٹ میں کراچی کے اہم آبی منصوبے کے فور کے لیے 10 ارب روپے مختص، جبکہ حکومت اسے شہر کے پانی کی بحران کو حل کی جانب اہم پیش رفت قرار دے رہی ہے۔ تاہم شہریوں کا کہنا ہے کہ ماضی میں بھی ایسے امکانات اور اعلانات ہوتے رہے مگر منصوبہ تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ کیا اس بار بجٹ میں رکھی گئی رقم وفاقی کراچی کی پیاس بجھا سکے گی؟ دیکھیے رابع صدیق کی رپورٹ میں۔ بجٹ میں رقم آ گئی، کیا اب کراچی کی پیاس بجھے گی؟ کراچی کے شہری برسوں سے پانی کی قلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایسے میں K4 منصوبے کو شہر کے لیے امید کی کرن سمجھا جاتا تھا۔ وفاق کے نئے مالی سال کے بجٹ میں اس منصوبے کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، لیکن شہری سوال اٹھا رہے ہیں کہ آیا یہ رقم واقعی منصوبے کی تکمیل پر خرچ ہوگی یا نہیں؟ اللہ بہتر جانے ہوگا یا نہیں ہوگا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ تو ہم سنتے آ رہے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، آج یہ چیز کمپلیٹ ہو جائے گی، آج یہ چیز کمپلیٹ ہو جائے گی، ہونے والا اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے بھی کئی منصوبوں کے لیے فنڈز مختص ہوئے لیکن عوام کو اس کا فائدہ نہیں ملا۔ اگر اس بار واقعی K4 مکمل ہو جاتا ہے تو کراچی کے لاکھوں لوگوں کو ریلیف ملے گا، لیکن ہمیں اس کی بروقت تکمیل پر خدشات ہیں۔ ماہرین کے مطابق K4 منصوبے کی بروقت تکمیل کراچی کے مستقبل کے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ شہر کی بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ پانی کی طلب میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید تاخیر پانی کے بحران کو مزید سنگین بنا سکتی ہے۔ جماعت اسلامی کراچی نے وفاقی بجٹ کو مسترد کر دیا۔ الزام عائد کیا ہے کہ نئے بجٹ میں کراچی کو اس کا جائز حصہ نہیں دیا گیا۔ قائم مقام امیر کراچی صفی الدین ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ کراچی ملکی معیشت میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے مگر ترقیاتی فنڈز کی تقسیم میں شہر کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے محمد خورشید رحمانی کی رپورٹ۔ بجٹ 2026-27 پر جماعت اسلامی کراچی کی شدید تنقید۔ کراچی کے لیے ترقیاتی فنڈز ناکافی قرار دے دیے۔ وفاقی حکومت پر شہر کو نظر انداز کرنے کا الزام لگا دیا۔ قائم مقام امیر جماعت اسلامی کراچی سیف الدین ایڈوکیٹ نے ادارہ نور الحق میں پریس کانفرنس کی، کہا کہ کراچی ملکی ریونیو میں بڑا حصہ دیتا ہے لیکن بجٹ میں شہر کو اس کا جائز حق نہیں دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ گرین لائن منصوبے کے لیے 6 ارب روپے درکار ہیں مگر بجٹ میں صرف 1.6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں جو کہ ناکافی ہیں۔ اگر کراچی کو آبادی کے لحاظ سے بجٹ کی تقسیم کی جائے تو یہ بجٹ کتنا بنتا ہے؟ 90 ارب روپے وفاقی حکومت کے بجٹ میں ہمارے ہونے چاہیے، اور سندھ کے بجٹ میں کراچی کے لیے پیسے اگر آبادی کے حساب سے رکھے جائیں تو یہ 367 ارب روپے ہونے چاہیے، اور فوڈ ایکٹنگ کے اندر ہمارا حصہ 222 ارب روپے ہونے چاہیے۔ یہ صورتحال ہے سب کراچی کی۔ کراچی اس کو تباہ کر دیا گیا ہے، کراچی برباد ہے، کراچی میں کوئی سہولت میسر نہیں ہے، نہ کراچی کے اندر سڑکیں میسر ہیں، کراچی کے گٹر کھلے پڑے ہوئے ہیں، سیوریج بہ رہا ہے، کراچی کے لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، کوئی چیز کراچی کے اندر موجود نہیں ہے۔ سیف الدین ایڈوکیٹ نے الزام عائد کیا کہ مختلف سیاسی جماعتوں نے مل کر ایسا بجٹ پیش کیا ہے جس میں کراچی کے بنیادی مسائل کو نظر انداز کیا گیا۔ جماعت اسلامی کراچی جنرل سیکرٹری توفیق الدین صدیقی اور رکن سندھ اسمبلی محمد فاروق نے وفاقی بجٹ کو مسترد کیا، بولے کہ حق تو تحریک مزید شدت کے ساتھ جاری رکھی جائے گی۔ کہ کراچی جو ہے وہ ہر سال اپنے ریونیو میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس گئے گزرے حالات میں بھی کراچی وفاق کو 65% ریونیو فراہم کرتا ہے، صوبہ سندھ کو 95-96% ریونیو دیتا ہے، لیکن اس کے اگینسٹ میں اس شہر کو جو کچھ ملنا چاہیے
तो वो उससे जो है उसको महरूम किया जाता है। वफाक ने जो कराची के साथ ज़्यादती की है, सबसे बड़ी ज़्यादती एक ये है कि इस दफ़ा भी कराची को पानी नहीं मिल सकेगा और कराची जिस तरह से प्यासा है इसी तरह प्यासा रहेगा। ये कराची के साथ चाहते क्या हैं, खाली टैक्स ले रहे हैं कराची से। अमीर जमात इस्लामी कराची का मजीद कहना था कि वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को मकामी हुकूमतों और टाउन्स के मातहत किया जाना चाहिए ताकि शहरी मसाइल बेहतर अंदाज में हल हो सकें। कैमरामैन अमजद के साथ मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। वफाकी हुकूमत ने बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स में कमी का ऐलान कर दिया, जिससे हुकूमती हल्के बड़े रिलीफ करार दे रहे हैं। लेकिन कम आमदन वाले मुलाजमीन का कहना है कि इस रायत का असल फ़ायदा ज़्यादा तनख्वाह लेने वालों को होगा, जबकि 30 से 40 हज़ार रुपये माहाना कमाने वाले अब भी महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट देखिए। विफाकी बजट 2026-27 में तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह में कमी का ऐलान किया गया है, जिस पर हुकूमत का मौक़िफ़ है कि मुलाजमीन को माली रिलीफ फराहम किया जा रहा है। लेकिन कम आमदन वाले शहरियों का कहना है कि वो पहले ही टैक्स नेट में शामिल नहीं थे, इसलिए इस रियायत से उन्हें कोई बराह रास्त फायदा नहीं पहुंचेगा। शहरी कहते हैं कि 30 से 40 हज़ार रुपये माहाना आमदन रखने वाले अफराद के लिए महंगाई, बिजली, गैस, ट्रांसपोर्ट और अशियाए खुरानोश के बढ़ते अखराजात ही सबसे बड़ा मसला है। वो उन लोगों के लिए दिया है जो ऑलरेडी बड़ी तनख्वाह ले रहे हैं, 30 लाख, 32 लाख या 35 लाख या 25 लाख रुपए, और वो ऑलरेडी आपके पास टैक्स के अंदर है। आपने ये किया कि उससे 10 की जगह 5 रुपए टैक्स ले रहे हैं। भाईजान, जो उसी फैक्ट्री में, उसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जो प्राइवेट जॉब कर रहा है, जिसकी तनख्वाह 20,000, 25,000 रुपए है, 30,000 रुपए है, उसके लिए क्या रिलीफ दे रहे हैं आप? तनख्वाहदार तबके का शिकवा है कि लाखों रुपए माहाना तनख्वाह लेने वालों को तो टैक्स में कमी का फायदा मिल जाएगा, लेकिन कम आमदन वाले मुलाजमीन की मुश्किलात बदस्तूर बरकरार रहेंगी। आज तक आवाम के लिए कोई बजट ना बनाए, ना ही अभी भी इन्होंने बजट उन लोगों के लिए बनाया है जिनकी मिनिमम मतलब तनख्वाह 32 लाख 35 लाख के कितने लोग हैं भाई। शहरियों का मौक़िफ़ है कि बजट में ऐसे इक़दामात की जरूरत थी जिनके असरात बराह रास्त आम आदमी की जिंदगी पर महसूस होते। कैमरामैन सजाद रईस के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21। नए माली साल के लिए वफाकी बजट आ गया। कम अज कम माहाना उजरत में 10% इजाफे की तजवीज़, मगर मेहनतकश तबका अब सिर्फ ऐलानात पर यकीन करने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि माजी में भी उजरतों में इजाफे के कई वादे हुए, लेकिन बहुत से इदारों में उन पर मुकम्मल अमल दरामद न हो सका। महंगाई, बढ़ते अखराजात और महदूद आमदनी के दरमियान मजदूर अब रिलीफ के वादों से ज्यादा अमली इक़दामात के मुंतज़र हैं। देखिए अक्सा शेख की ये रिपोर्ट। नया बजट, नई उम्मीद, मजदूर हुकूमती वादों के मुंतजिर। वफाकी हुकूमत का नए माली साल के लिए बजट आ गया। कम अज कम माहाना उजरत में 10% इजाफे की तजवीज़ ने मेहनत कश तबके में एक नई उम्मीद जगा दी। फैक्ट्रियों, वर्कशॉप्स और तामीराती मकामात पर काम करने वाले मजदूर इस ऐलान को अपनी जिंदगियों में बेहतरी की एक मुमकिना किरण तो करार दे रहे हैं, लेकिन साथ ही कई सवालात भी उठा रहे हैं। शदीद गर्मी हो या मुआशी मुश्किलात, मेहनत कश रोजाना अपने खानदानों का पेट पालने के लिए मेहनत करते हैं। उनका कहना है कि महंगाई ने जिंदगी के तमाम शोबों को मुतासिर किया है, जबकि घरेलू अखराजात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। माजी में भी कम अज कम उजरत में इजाफे के ऐलानात होते रहे, मगर बेशतर निजी इदारों में इन फैसलों पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया। उसी वजह से वो इस बार सिर्फ ऐलान नहीं बल्कि उसके मौसर निफाज के मुंतजिर हैं। फायदा तो होगा, लेकिन गवर्नमेंट अमल कराए तो। अमल गवर्नमेंट करवाती नहीं है, खाली ऐलान कर देती है। यहाँ पर हम गरीब तो वही 1500 2000 उसमें गुजारा ही नहीं होता। कभी रोजी अच्छा बन जाता है, कभी जो है समझो खर्चा निकल जाता है। इसमें से कहने में करने में बड़ा फर्क होता है। ज्यादातर दिखावा होता है, गरीबों को मिलता कुछ नहीं, वो बड़े बड़े मगरमच्छ खुद खा जाते हैं। कम अज कम उजरत में इजाफे की तजवीज़ ने मेहनत कश तबके में उम्मीद तो पैदा कर दी है, मगर अब नजरे हुकूमती ऐलान पर नहीं बल्कि उसके अमली नफाज पर मरकूज हैं, क्योंकि मजदूर जानते हैं कि कागजों में लिखा रिलीफ और जेब में आने वाला रिलीफ दोनों में बहुत फर्क होता है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। शहर में शजरकारी को फ़रोग़ देने के लिए मेयर कराची मुतहरिक बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो पार्क में 5,000 से ज़ायद मैंग्रोव्स के दरख्त लगाए जाएंगे। शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर भी काम जारी है। नवंबर में किमाड़ी में बायो ड्राइव सिटी पार्क का इफ्तिताह करेंगे। मज़ीद तफसीलात शुएब मुख्तार की रिपोर्ट में। शहर को हरा भरा करने का अज़्म, मेयर कराची इन एक्शन।
बेनजीर भुट्टो पार्क में मैंग्रोव और शजरकारी मुहिम की इफ्तारी तकरीब से खिताब करते हुए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बोले, हम बहैसियत हुकूमत स्कूल के बच्चों को मैंग्रोव की अफादियत से आगाह करेंगे। राशिद मिनास रोड पर अदालती हुक्म पर तोड़ेगा अलादीन पार्क को भी फॉरेस्ट में ट्रांसफॉर्म करेंगे। बहैसियत सरकार के स्कूल के बच्चों को, बच्चियों को, नौजवान यंग माइंड्स को मैंग्रोव की अफादियत के बारे में, माहौल दोस्त सरगर्मी की अफादियत के हवाले से आगाह कर पाएंगे। राशिद मिनास रोड पर जो माजी में अलादीन वाटर पार्क होता था, जिसको गुलजार अहमद साहब ने तोड़वा दिया था, हमने फैसला किया है कि उसको एक जंगल में ट्रांसफॉर्म करें, एक अर्बन फॉरेस्ट में कन्वर्ट करें। वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो को ये बात नागवार गुजरी है कि वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के मैंडेट में छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। पहली मरतबा तमाम वसाइल रखने के बावजूद वफाकी हुकूमत को वहाँ बदतरीन शिकस्त का सामना रहा। आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी भी गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगी। बिलावल साहब एक सियासी पार्टी के रहनुमा हैं, वो अपनी पार्लिमानी पार्टी में बैठे और उनको ये बात सख्त नागवार गुजरी कि जो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने हमें मैंडेट दिया है, उस मैंडेट में कुछ छेड़छाड़ करने की वफाकी हुकूमत कोशिश कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनेगी। एमकेएम को आड़े हाथों लेते हुए मेयर कराची का कहना था कि कराची से ताल्लुक रखने वाले वफाकी वज़रा वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करते हैं तो पानी के मसाइल पर बात क्यों नहीं करते। 28वीं और 27वीं तरमीम की बातें होती हैं मगर शहर के मसाइल पर कोई बात नहीं करता। कैमरामैन अहमद अली के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। कारोबारी मैदान से आपको अपडेट करें। अमेरिका ईरान कशीदगी और तेल की कीमतों में कमी से स्टॉक मार्केट में तेजी। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1921 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,72,000 की सतह बहाल हो गई। मज़ीद जानते हैं अशरफ खान की रिपोर्ट में। स्टॉक एक्सचेंज में बजट से मुतालिक कारोबारी हफ्ते के दौरान मिला जुला रुझान देखने में आया। मजमूई तौर पर मार्केट मुस्बत जोन में बंद हुई। कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,920 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,72,399 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हफ्ते के दौरान इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,73,093 जबकि कम तरीन सतह 1,68,432 पॉइंट्स रिकॉर्ड हुई। इस दौरान मार्केट में 3 अरब 87 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए, जिनकी मजमूई मालियत 144 अरब रुपए रही। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 191 अरब रुपए का इजाफा देखा गया, जिसके बाद मजमूई मार्केट वैल्यू 19,120 अरब रुपए तक पहुंच गई। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी और आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नरमी ने सरमायाकारों के एतमाद को तकवीत दी, जिसके नतीजे में स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार रहा। हम देख रहे हैं सिक्लिकल स्टॉक्स में खासतौर पर सीमेंट, स्टील में काफ़ी अच्छी बाइंग देखने में आ रही है। लॉजिस्टिक स्टॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छी बाइंग हमने देखने में आ रही है। ऑयल एंड गैस सेक्टर ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मशरक़ी वस्ती में जो जंगी सूरत हाल है उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है और ऑयल प्राइसेस हम देख रहे हैं 86 बैरल से नीचे आ चुके हैं, जिसका डायरेक्टली फ़ायदा हम देख रहे हैं ऑयल स्टॉक्स को हो रहा है। सरमायाकार पुरजोश अंदाज में नए सिरे से बाइंग कर रहे हैं। दूसरी जानिब मुल्क को मई 2026 के दौरान 4.3 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई, जो सालाना बुनियाद पर 15% जबकि माहाना बुनियाद पर 20% ज्यादा है। तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफे को बैरूनी खातों के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। ऑटो सेक्टर में भी बेहतरी देखी गई। मई 2026 के दौरान गाड़ियों की फरोख्त 17,660 यूनिट्स तक पहुंच गई। फरोख्त में सालाना बुनियाद पर 19% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, ताहम माहाना बुनियाद पर 20% कमी सामने में आई। तज्जियाकारों का कहना है कि मुआशी अशारियों में बेहतरी, तरसीलात ज़र में इजाफा और सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद के बाइस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान आइंदा हफ्तों में भी बरकरार रहने का इम्कान है। अशरफ खान, सिटी 21। गुलिस्तान जोहर में भी फुटबॉल फीवर उरूज पर पहुंच गया। कौमी फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान सदाम हुसैन कहते हैं, फुटबॉल में बच्चों का शौक काबिल दीद है। पाकिस्तान में भी फुटबॉल के फरोग के लिए काम करना चाहिए। देखते हैं जावेद इकबाल की रिपोर्ट। दुनिया भर की तरह शहर कायद के इलाके गुलिस्तान जौहर में भी फुटबॉल का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है।
जौहर फुटबॉल एकेडमी में फुटबॉल कैंप जारी है, जहां 4 साल से लेकर 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए समर तरबियती कैंप लग गया। कौमी फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान सद्दाम हुसैन ने समर कैंप का दौरा किया, उनकी कारकर्दगी का जायजा लिया और बच्चों के साथ तस्वीर बनवाई। सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए सद्दाम हुसैन का कहना था कि मुल्क में फुटबॉल का बेपनाह टैलेंट और शौक है। हुकूमत फुटबॉल की सरपरस्ती करे। मेरी पसंदीदा टीम ब्राजील और रोनाल्डो फेवरेट खिलाड़ी हैं। अगेन इट्स अमेजिंग, जिस तरह पार्क में आप देख रहे हैं, इस एकेडमी में बच्चों का जुनून आप देख लें, जिस तरह सिंसियर है, स्पेशली उनकी फैमिलीज आर वेरी इंटरेस्टेड के बच्चे हेल्दी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों, सोशल अपने स्किल को इम्प्रूव करें साथ में। इस्लामाबाद फुटबॉल एसोसिएशन के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान खान का कहना था कि जौहर फुटबॉल एकेडमी जबरदस्त काम कर रही है। फुटबॉल की तरक्की के लिए सरकारी सरपरस्ती इंतहाई जरूरी है। उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी तो जब एक बच्चा अच्छा खेलता है, जब वो समझदार होता है, तो वो इस खेल से साइड पे हो जाता है कि भाई इसमें तो मेरा फ्यूचर ही नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट को इस पे तवज्जो देनी चाहिए कि ये एक इतना ज़बरदस्त स्पोर्ट्स है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खेला जाता है और दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व इस स्पोर्ट में होता है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में इस पे तवज्जो नहीं दी जा रही। पाकिस्तान फुटबॉल टीम के साबिक हेड कोच तारिक लुत्फी, ऑफिशियल्स और वालिदैन की बड़ी तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। जावेद इकबाल, सिटी 21।